So we start with that thing. That is the remaining part of lecture number 17. फिर आपके प्रीवियस क्लासेस के कोई क्वेश्चंस हो तो वो इंटरटेन कर लेंगे. So here is the topic of Fourier transform for periodic signals. Now generally we say that analysis equation for a Fourier transform of a aperiodic signal is given by x of j omega equals to integral x of t e raised power minus j omega t dt. आवाज़ आ रही है सबको? जी सर. जी सर. यस सर. हेलो, यस सर, आवाज आ रही है सर. आप लोग सुन रहे हैं मुझे कि नहीं? यस जी सर. सर. जी. चलिए ठीक है. So in the previous class we say analysis equation of the Fourier transform is given by x of j omega x of t raised power minus j omega t dt. So this equation is used to convert a time domain signal into frequency domain signal, which might be a low frequency signal or a high frequency signal. Similarly, the inverse equation or the synthesis equation is given by x of t equals to 1 over 2 pi x of j omega e raised power j omega t d omega. Now here we assume an impulse signal with an amplitude 2 pi a1 and located at omega is equal to omega 1. So this one impulse is considered in the frequency domain. जो एक impulse है with a frequency located at omega is equal to omega 1 and an amplitude is 2 pi a1. Now using the synthesis equation to find inverse of this particular frequency domain signal, so for this we say that x1 of t तो यहाँ पे प्लीज ये क्या x1 of t equals to 1 over 2 pi integral x1 of j omega e raised power j omega t with the value x1 of j omega equals to 2 pi a1 delta of omega minus omega 1. तो ये वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट कर दें और इस इंटेग्रल को सॉल्व करें. So as we say there is an impulse at omega is equal to omega 1 multiplied by e raised to the power j omega t. So this entire function is defined only for omega equals to omega 1. So 2 pi cancels out with this 2 pi and we are left with a1 e raised to the power j omega 1 t. जब आप किसी भी फंक्शन को इम्पल्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट विल बी एन impulse and integral of impulse equals to a single impulse. So we say this 2 pi cancels out with this 2 pi और हमारे पास क्या बच जाएगा a1 multiplied by यहाँ पे जब ओमेगा की वैल्यू ओमेगा 1 ले तो डेल्टा ऑफ 0 which is equal to 1 and e raised power j omega 1 t. So if the frequency domain signal is 2 pi a1 del of omega minus omega 1, that is an impulse signal. इसका जो inverse transform है, that is time domain signal, is x1 of t equals to a1 e raised to the power j omega 1 t. x2 of j omega is 2 pi a2 del of omega minus omega 2. Then x2 of t will be equal to a2 e raised to the power j omega 2 t. Sample or kth frequency component like xk of j omega equals to 2 pi ak into delta of omega minus omega k. Then its inverse transform is given by the equation xk of t will be
a k e raised power j omega k t, where omega k represents the kth frequency component. Now, using the linearity property, we say that x of t equals to x1 plus x2 plus x3 up to xk, where x1 is a1 e raised power j omega 1 t plus a2 e raised power j omega 2 t up to ak is e raised power j k omega t. इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लें तो वी से एक्स ऑफ टी इक्वल्स टू समेशन से एल फ्रॉम 1 टू के, यहाँ पे प्लीज ए एल आएगा, दिस विल बी ए एल। और इसी इक्वेशन को अगर हम जनरली लिखें, वी से ओमेगा के इक्वल्स टू के ओमेगा नॉट, and then instead of from 1 to k, you can assume that k limits from minus infinity to plus infinity a k is e raised to the power j k omega naught t. अब जो time domain signal है, this is basically, so as the above equation is the Fourier series representation of periodic signal x of t with a k is known to be the Fourier series coefficients. Then its Fourier transform is given by the above procedure, that here we say this is x of j omega. X of j omega equals to 2 pi a1 delta of omega minus omega 1 plus 2 pi a2 delta of omega minus omega 2 up to 2 pi a k is delta of omega minus omega k. Again, this can be written as summation L from 1 to k 2 pi a L delta of omega minus omega L. Generally, we say if x of t is summation k from minus infinity to plus infinity a k is e raised to the power j k omega naught t. The Fourier series this is for the periodic signal. Then its Fourier transform is given by the equation summation k from minus infinity to plus infinity 2 pi a k is delta of omega minus k omega naught. तो यहाँ पे अब वैल्यूज क्या हैं, 2 pi is a constant number, a k is represents the Fourier series coefficients of a periodic signal, and similarly omega naught represents the fundamental frequency and k omega naught represents the kth frequency component. अब अगर हमारे पास periodic signal हो, तो for periodic signal we say that Fourier की definition क्या थी, Fourier series definition was that any periodic signal can be represented as a linear combination of harmonically related basic periodic signals. Generally, here we say that basic periodic signal is a complex exponential periodic signal. So Fourier transform of any periodic signal will be given by the equation summation k from minus infinity to plus infinity 2 pi a k is delta of omega minus k हेलो omega. सर नहीं सर क्या हम सुन लोग रहा अपनी मेरे गप ख्याल लगा में। सकते हैं फिर? Now here we use two terms. सर हम लोग What अपनी is the गप लगा difference सकते हैं फिर? between discrete सर time Fourier transform हाँ and सर सुन ही हमें नहीं समझ रहा। नहीं continuous time हो जाए मैं सर कॉल Fourier करता हूँ सर। transform? And the second one is नहीं 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 discrete खैर है, Fourier बस सर को transform डिस्टर्ब ना and करो, पढ़ाने दो। continuous Fourier नहीं सर transform. असल में सुन नहीं रहा। इनको डिफरेंस बता सकते हैं? जी सर मैं बता सकता हूँ सर, Discrete मैं Yes, बता Fourier sir. सकता हूँ सर, transform and मैं continuous बताऊंगा आज Fourier सर transform. मैं भी बता सर आज सकता मैं हूँ सर। बताऊंगा। मुझे कुछ सुन भी रहा है कि नहीं, मैं वैसे ही बोल सर रहा आप हूँ? हमें नहीं सुन रहे सर, आप सुनना ही नहीं चाहते सर हमें। छत से गिरा और मर गई। मुझे लगा सर एक आध Please में हमें reply. सुनते हैं। Okay, I started with this thing that consider a frequency domain signal considering a single impulse with amplitude 2 pi a1 delta of omega minus omega 1.
Now using the synthesis equation, we say that its inverse can be obtained by this equation 1 over 2 pi integral 2 pi a1 del of omega minus omega 1 e raised power j omega t d omega. So solving this, we say whenever an impulse is multiplied with any another signal, then the resultant is only the impulse function and the integration does not exist then. Because हमारे पास एक ही sample है, and when there is only one sample, and the result of integration of that sample equals to the same sample. So here this entire function is defined only at omega equals to omega 1. So here 2 pi cancels out with 2 pi. So we are left with a1, where a1 is any real constant. And omega equals to omega 1, so e raised power j omega 1 t. So x1 of t equals to a1 e raised to the power j omega 1 t. So similarly, if we consider x2 of j omega equals to 2 pi a2 del of omega minus omega 2, then its inverse is given by the same synthesis equation equals to a2 e raised to the power j omega 2 t. Similarly, if we consider a kth impulse, so xk of j omega equals to 2 pi ak del of omega minus omega k, then its inverse is given by xk of t equals to ak e raised power j omega k t. Now using the linearity property, if we say that signals are added in time domain, their transforms are also added. So x of t is equal to x1 of t plus x2 plus x3 up to xk, or x of t equals to a1 e raised power j omega 1 t plus a2 e raised power j omega 2 t up to ak e raised power j omega k t. Then x of t equals to, if you write this summation L from 1 to k al e raised power j omega l t, or very generally, if we consider a signal, let's say x of t equals to summation k from minus infinity to plus infinity, a k is e raised to the power j omega kt, where omega k equals to k omega naught. So if we say all these frequency components are harmonically related, so then this is a k, summation a k is e raised power j k omega naught t, and j ऊपर तो हमने वैल्यूज ली है ना, ऊपर तो हमने सिंपल सिग्नल्स ली हैं x1 x2 अप टू xk. So xk is from L1 to k al e raised power j omega l t. तो यहाँ पे अगर हम कहें कि जी इंस्टेड ऑफ ओमेगा एल वी सेड इज ओमेगा के, एट के लिमिट्स फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, मीन्स एक सिग्नल है जिसके अंदर हर फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है. सो के फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी, नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन हम सिर्फ यहाँ पे इवन ऑड या सिमेट्री को स्टडी करने के लिए वी कंसिडर नेगेटिव वैल्यूज, कि सिर्फ आपके पास ट्रांसफॉर्म किस टाइप का है, सिर्फ उन प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए वी कंसिडर द नेगेटिव फ्रीक्वेंसी. एक्चुअली नेगेटिव फ्रीक्वेंसी कुछ भी नहीं होती, ओनली इट्स द पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी. ठीक है. सर इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास मतलब एक जो कोफिशिएंट है, एक a1 है एक a-1 है, तो -1 के लिए पॉजिटिव होगी और जो नेगेटिव मतलब पॉजिटिव उनके लिए नेगेटिव होगी. क्या मतलब? मतलब हमारे पास जो दो कोफिशिएंट है ना, एक एक a1 है, a1 है और एक a-, जी, तो एक के लिए आप सिर्फ ही कह सकते हैं कि एम्पलीट्यूड तो हमेशा पॉजिटिव होगा, उसका फेज चेंज हो सकता है दूसरे से. जिस तरह हम टाइम ये में कहते यही हैं कह कि रहा हूँ. नहीं, जिस तरह हम कह रहे हैं ना टाइम में टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, तो फिर माइनस टाइम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो सिर्फ आपके जो फेजर नंबर्स हैं, फेजर क्वांटिटीज हैं, उनमें उस फेज डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है. एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो टाइम डोमेन में वी से दे आर एट अ डिफरेंस ऑफ 180 डिग्रीज. ठीक है, या आप उसको 2 पाई रेडियंस कह दें. तो अगर फ्रिक्वेंसीज में भी नेगेटिव साइन आता है, तो उसका सिंपली मतलब यही है कि they are apart from each other with a 180 degrees or pi radians, 2 pi radians. Okay, positive
negative sign simply is a representation. So here we say x of t summation k from minus infinity to plus infinity a k is e raised to power j k omega naught t. So if we consider this signal, so here we say it represents the Fourier series representation of a periodic signal x of t with the coefficients Fourier series coefficients a k's. अभी हमने जो ऊपर ट्रांसफॉर्म्स की इक्वेशन लिखी है x of j omega equals to, so we can similarly say this is x1 of j omega plus x2 of j omega plus up to xk of j omega. So again, like it continuous time domain signal, we say this is summation L from 1 to k 2 pi al delta of omega minus omega L. Generally अगर हमारे पास ये इक्वेशन है टाइम डोमेन के फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी a k is e raised to power j k omega naught, then using this equation we can rewrite it as summation k from minus infinity to plus infinity 2 pi a k's into delta of omega minus k omega naught. अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को देख लें, so here we say x of t is periodic signals, so its Fourier transform is given by this equation. और अगर आप इसी का a periodic signals का जो हमने बिल्कुल स्टार्ट में लिखा है एनालिसिस इक्वेशन एंड सिंथेसिस इक्वेशन, so that was x of j omega is x of t e raised to power minus j omega t. So here this Fourier transform is given when we say x of t is aperiodic. ठीक है, जब x of t periodic होगा and its periodic signal is represented by the Fourier series representation, then its transform is given by the equation x of j omega is summation k from minus infinity to plus infinity 2 pi a k's into delta of omega minus k omega नॉट. अब इनमें फ़र्क क्या है? अगर आप सिग्नल ए पेरियोडिक सिग्नल लें x of t, then its Fourier transform is given by the equation. मैं सिर्फ यहाँ कंपैरिजन के लिए लिख रहा हूँ दोनों को. दोनों इक्वेशंस में आपको क्या डिफरेंस लग रहा है? एक में टाइम डोमेन सिग्नल पीरियोडिक है, दूसरे में टाइम डोमेन सिग्नल ए पीरियोडिक है. इन दोनों इक्वेशंस में कोई मेजर डिफरेंस है? Anyone from the class? सर सर टाइम एक में ओमेगा नॉट है और एक में ओमेगा है। और टाइम ई पावर माइनस जे ओमेगा नॉट है और एक ई पावर जे ओमेगा प्लस जे। इसमें तो ए रेस्ट पावर कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ ई रेस्ट पावर है. इसमें डेल्टा फंक्शन है, इसमें डेल्टा फंक्शन नहीं है. और सर जो पीरियोडिक है 2 पाई से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब वो रिपीट होगा. नहीं, ए के कांस्टेंट नहीं है, ए के फोरियर सीरीज कोफिशिएंट्स है. जी बिल्कुल सर, जहाँ पे फोरियर सीरीज कोफिशिएंट डिफाइन है सिर्फ हमारे पास एक्स ऑफ जे ओमेगा होगा, बाकी के लिए नहीं होगा. और ये जो दूसरा है इसमें से तो तमाम मतलब एक्स ऑफ टी हम वो कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर. अगर इसमें मेजर डिफरेंस आप देख लें, यहाँ पे इंटेग्रल का साइन है और यहाँ पे साइन समेशन का है. इंटेग्रल इज जनरली रिप्रेजेंटेड फॉर अ कॉन्टिन्यूस केस, कि जहाँ पे आपके पास से अगर आप टाइम ओमेगा ले रहे हैं एक्स ऑफ जे ओमेगा, सो राइट हैंड साइड को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे विद रेफरेंस टू टाइम, तो रिजल्टेंट सिग्नल आएगा उसमें ओमेगा विल बी अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑफ टाइम. ठीक है, जबकि यहाँ पे आप देख ले तो यहाँ पे क्या चीज़ है? समेशन है. तो यहाँ पे जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है, दिस विल बी बेसिकली अ डिस्क्रीट सिग्नल. ठीक है, तो शॉर्टली डिफरेंस क्या है? अगर आपके पास एक्स ऑफ टी पीरियोडिक होगा
तो जो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आएगा इट विल बी डिस्क्रीट। क्यों डिस्क्रीट है? अगर सिग्नल पीरियोडिक हो तो पीरियोडिक सिग्नल फ्रॉम फोरियर सीरीज इट इज अ composition ऑफ harmonically related basic periodic signals. So when we say they are harmonically related, तो ए केस कौन से पॉइंट्स पे डिफाइंड है? ए केस आर ओनली डिफाइंड फॉर द इंटीजर वैल्यूज ऑफ के। मींस के की वैल्यू अगर जीरो है तो वी से इट्स अ डीसी कंपोनेंट, के की वैल्यू वन है तो इट्स फर्स्ट हार्मोनिक विच इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो आपसे कोई पूछता है कि जी फर्स्ट हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी क्या है? दैट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट। सिमिलरली सेकेंड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? इट विल बी टू टाइम्स ओमेगा नॉट। kth सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? इट विल बी k टाइम्स ओमेगा नॉट। जी तो डीसी की फ्रीक्वेंसी जीरो होगी ना, ए जीरो। ओमेगा नॉट जीरो आएगा ना उसके केस में, फ्रीक्वेंसी जीरो होगी। ओमेगा नॉट तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, वो पाई बाई टू है, पाई बाई थ्री है, 20 हर्ट्स है, 30 हर्ट्स है, जो भी है। ठीक है, तो ओमेगा नॉट इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वेयर ए नॉट का मतलब क्या है कि के इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पे अगर आप के जीरो कर दें तो दिस विल बी जीरो टाइम्स ओमेगा नॉट। सो ए नॉट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? जीरो फ्रीक्वेंसी होगी विच इज अ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी सिग्नल। ठीक है, ए वन विल बी बेसिकली द फर्स्ट हार्मोनिक, सो दिस विल बी वन टाइम्स ओमेगा नॉट। जो फर्स्ट हार्मोनिक है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? दैट इज इक्वल टू द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट। सिमिलरली A2 का मतलब क्या होगा? सेकेंड हार्मोनिक कंपोनेंट। तो सेकेंड हार्मोनिक कंपोनेंट की फ्रीक्वेंसी विल बी टू टाइम्स fundamental frequency or two times omega naught. So in this case we say that periodic signal is defined only for the discrete set of values for Fourier series coefficients. So a naught, a1, a2, a3 इस पे आप लैब भी सबमिट करा चुके हैं जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो इसकी क्लास का इसी क्लास के एंड में डिस्कस करेंगे. So we say a1, a2, a3 up to a case generally represent the Fourier series coefficients. तो k integer है, k equals to 0, k equals to 1, k equals to 3, k equals to 4 up to other values. तो जब k integer values है तो we say they are the Fourier series coefficients. But when we say x axis पे आप integer values की जगह अगर आप frequency को represent करेंगे तो k की वैल्यू 1 का मतलब होगा first harmonic which is generally a fundamental frequency. Similarly A2 का मतलब क्या होगा? सेकेंड हार्मोनिक कंपोनेंट. तो सेकेंड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? टू टाइम्स फंडामेंटल. सिमिलरली A3 मीन्स A3 तो आपके पास थर्ड कोफिशिएंट है, but when we say the coefficients in terms of frequencies, so that will be three times fundamental. So shortly we say अगर आपके पास टाइम डोमेन सिग्नल पीरियोडिक होगा तो उसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है दिस विल बी अ डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म. ठीक है, और सिमिलरली अगर आपके पास टाइम डोमेन सिग्नल अपीरियोडिक है देन इट्स ट्रांसफॉर्म इज ऑलवेज अ कॉन्टिन्यूस फोरियर ट्रांसफॉर्म. मीन्स कि जो आपके पास ट्रांसफॉर्म्ड वेरिएबल है ओमेगा फ्रीक्वेंसी डोमेन में, omega can be continuous, omega can be discrete. omega कब continuous होगा? जब आपके पास टाइम डोमेन सिग्नल अपीरियोडिक हो. omega कब discrete होगा? जब आपके पास टाइम डोमेन सिग्नल पीरियोडिक हो. तो उस पीरियोडिक सिग्नल में सिर्फ फंडामेंटल और उसके हार्मोनिक्स का कॉम्बिनेशन है, जबकि अपीरियोडिक सिग्नल में आपके पास हर किस्म की फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल है. So this particular equation will be used for the Fourier transform of aperiodic signals, and this particular equation will be used as a Fourier transform of periodic signals.
इसमें अननोन्स आपके पास सिर्फ फोरियर सीरीज कोफिशिएंट्स हैं। अगर आपके पास सिग्नल पीरियोडिक है तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड इट्स कोफिशिएंट्स, देन मल्टीप्लाई ईच कोफिशिएंट बाय 2 पाई, मीन्स उसका एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा, इट विल बी मल्टीप्लाइड विद 2 पाई। तो उससे जो रिजल्टेंट इक्वेशन बनेगी दैट विल गिव यू द Fourier transform. Means if you know the coefficients, you can easily construct its Fourier transform. And the Fourier transform of a periodic signal will be a continuous function of omega. यहाँ पे देखिए 3-4 वेरिएबल्स हैं, बेसिकली दो, टाइम डोमेन में t है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में ओमेगा है। अब t अगर डिस्क्रीट है तो फिर तो हम कहते हैं इट्स अ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, t कॉन्टिन्यूस है तो वी से इट इज अ कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल। अब सिग्नल कॉन्टिन्यूस हो या डिस्क्रीट हो, इट कैन बी पीरियोडिक, इट कैन बी aperiodic. अगर आपके पास टाइम डोमेन सिग्नल whether it is continuous time or discrete time, if it is aperiodic then its Fourier transform is always a continuous Fourier transform. और अगर आपके पास टाइम डोमेन सिग्नल whether it is a continuous time signal or discrete time signal, if it is periodic then its Fourier transform is always discrete. और एक और चीज़ ये है कि आपके पास जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म आएगा चैप्टर नंबर 5 में, अगर आपके पास सिग्नल पीरियोडिक है और वो डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक है, उसमें दो चीज़ें होंगी कि आपका जो फ्रीक्वेंसी डोमेन है, डोमेन सिग्नल होगा फोरियर ट्रांसफॉर्म, इट विल बी डिस्क्रीट एंड ऑल्सो इट विल बी पीरियोडिक। कॉन्टिन्यूस के केस में इट इज डिस्क्रीट ओनली, पीरियोडिक नहीं है ये इक्वेशन, ठीक है। लेकिन जब हम कहेंगे कि इंस्टेड ऑफ एक्स ऑफ टी वी से एक्स ऑफ एन, then this equation will be discrete as well as periodic. So shortly there are the two terms. What is the difference between discrete time Fourier transform and continuous time Fourier transform? So discrete time Fourier transform is a Fourier transform of discrete time signals and systems. अब वो periodic signals हो या aperiodic signals हो. Similarly, CTFT stands for the continuous time Fourier transform, which means that Fourier transform of continuous time signals and systems. जबकि ये जो टर्म है डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म DFT मीन्स कि फोरियर ट्रांसफॉर्म कब डिस्क्रीट होगा, ठीक है। द सेकेंड टर्म इज कॉन्टिन्यूस फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म कब कॉन्टिन्यूस होगा, मीन्स जो आपके पास ट्रांसफॉर्म्ड वेरिएबल है ओमेगा, ओमेगा कब कॉन्टिन्यूस होगा और ओमेगा कब डिस्क्रीट होगा। सो ओमेगा इज कॉन्टिन्यूस when we say its corresponding time domain signal is aperiodic. This omega is discrete when we say its corresponding time domain signal is periodic. So the difference between the two terms, discrete Fourier transform and continuous Fourier transforms, ठीक है। Fourier transform कब discrete है और कब continuous है। यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ है, इट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द Fourier transform and Fourier series. So generally we say A k's are 1 over t integration over time period 1 time period t x of t e raised power minus j k omega naught t dt. इसकी डिटेल्स पे इस बुक में गिवन है, उनको ज़रा देख लें। So here if we say capital T a periodic signal instead of periodic signal, and we say capital T represents the constant value. So if t approaches to infinity, then integral from minus infinity to plus infinity x of t e raised power minus j k omega naught t dt. And we know that x of j omega is integral x of t e raised power minus j omega t dt. So generally जो relationship है between the Fourier series coefficients and its Fourier transform, so that is basically 1 over t multiplied by x of jk omega naught. Excuse me, sir. जी
सर अगर हमारे पास कंटिन्यूस टाइम मतलब सिग्नल हो तो उसमें से हमारे पास जो कोफिशिएंट है वो तो मतलब दो ही होंगे ना, एक नेगेटिव होगा कंपोनेंट और एक पॉजिटिव, क्योंकि उसमें से तो ज्यादा नहीं हो सकते। अगर हमारे पास ए पीरियोडिक हो तो फिर उसमें से ज्यादा हो सकते हैं ना। देखिए पीरियोडिक सिग्नल, जिस तरह भी आपने एक क्वेश्चन किया था स्क्वायर वेव, ठीक है, वो जो गिब्स फिनोमेना आपने लैब भी सबमिट करवाई है, मैं भी डिस्कस करनी है आपके साथ। तो जी उसमें क्या था कि कोफिशेंट्स, बहुत से कोफिशेंट्स हैं, किसी सिग्नल में सिर्फ ऑड कोफिशेंट्स होंगे, किसी में सिर्फ इवन होंगे। जो आप सिर्फ वन और -1 की बात कर रहे हो, वो अगर आप कहते हैं कि जी कॉज ऑफ ओमेगा नॉट टी, कॉज सिग्नल है या साइन सिग्नल है विद ओनली अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो फिर उसमें दो कोफिशेंट्स हैं, A1 एंड A-1। लेकिन अगर आपके पास पीरियोडिक स्क्वायर वेव है, कोई ट्राइंगुलर वेव है, कोई सॉ टूथ वेव है, कोई और डिफरेंट टाइप की पीरियोडिक वेव है, तो उसमें मल्टीपल हार्मोनिक्स हैं, सिर्फ एक नहीं है। ठीक है, जी सर, जी सर, सही समझ। A1 और A-1 आप सिर्फ उस केस में कह रहे हैं, लेट्स से साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी या कॉज ऑफ ओमेगा नॉट टी, तो मीन्स उसमें सिर्फ एक ही सिंगल फ्रीक्वेंसी सिग्नल है। तो अगर सिंगल फ्रीक्वेंसी सिग्नल है तो फिर उसके A1 और A-1 ही डिफाइंड होंगे फंडामेंटल्स। लेकिन अगर वो कंपोजिशन है मल्टीपल सिग्नल्स का, जिस तरह आपने पीरियोडिक स्क्वायर वेव की एक ही एग्जांपल की है, ठीक है, देन फॉर दैट मल्टीपल वैल्यूज ऑफ k विल बी डिफाइंड, मीन्स उसमें बहुत से हार्मोनिक्स के कॉम्बिनेशन से वो सिग्नल बन रहा है। So generally here we say DFT stands for discrete Fourier transform, कि Fourier transform कब discrete होगा, जब उसका corresponding time domain signal periodic हो, ठीक है। और continuous Fourier transform means whenever the time domain signal is aperiodic। अब यहाँ पे ये लिमिटेशन नहीं है कि वो continuous time aperiodic signal हो या discrete time aperiodic signal हो। अगर वो ए पीरियोडिक है तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हमेशा कॉन्टिन्यूस आएगा। अगर सिग्नल पीरियोडिक है तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हमेशा डिस्क्रीट होगा। अब एक चीज थी कि फोरियर ट्रांसफॉर्म पीरियोडिक है और फोरियर ट्रांसफॉर्म ए पीरियोडिक हो। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म कब पीरियोडिक होगा, जब उसका टाइम डोमेन सिग्नल डिस्क्रीट हो, तो फिर उसकी पीरियोडिसिटी 2 पाई है। एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म कब ए पीरियोडिक होगा, जब उसका जो इनवर्स टाइम डोमेन सिग्नल है दैट विल बी कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल। क्लियर जी। वो कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल है अगर, तो फिर उसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो ए पीरियोडिक है। लेकिन अगर आपके पास डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है या डिजिटल सिग्नल है, तो फिर उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म पीरियोडिक है। तो कॉन्टिन्यूस के केस में होता है ना। तो आपने जो अभी एक असाइनमेंट सबमिट करवाई है लैब नंबर 5 जो थी गिब्स फिनोमेना, उसमें यही चीज़ थी कि अगर आप कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल ले रहे हैं, पीरियोडिक सिग्नल, उसके कोफिशिएंट्स फाइंड किए आपने, फिर उन कोफिशिएंट्स को दोबारा मिल के आपने ओरिजिनल सिग्नल बनाने की कोशिश की, तो उसमें यही पॉइंट था, यू फाइंड डिसकॉन्टिन्यूटिज और रिपल्स और डिस्टॉर्शंस एंड द डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स। कि मीन्स अगर आप के पास कोफिशिएंट्स हैं और आप उनसे ओरिजिनल सिग्नल बनाते हैं टाइम डोमेन, कॉन्टिन्यूस टाइम डोमेन में, तो आपको वही सिग्नल वापस नहीं मिलता। जबकि डिस्क्रीट के केस में जो फोरियर कोफिशिएंट्स हैं दे आल्सो रिपीट, और उसकी इक्वेशन हमने लिखी थी प्रीवियस क्लास में, ए केज आर इक्वल टू ए के प्लस एन। ठीक है, तो अगर आप डिस्क्रीट टाइम सिग्नल लें, उसके को पीरियोडिक सिग्नल, उसके कोफिशिएंट्स फाइंड करें और फिर उन कोफिशिएंट्स को दोबारा ज्वाइन करें टू फाइंड द ओरिजिनल सिग्नल, तो आपको वही सिग्नल एग्जैक्टली वापस मिलता है। जबकि कॉन्टिन्यूस के केस में आपको एग्जैक्टली वही सिग्नल वापस नहीं मिलता।
सो दैट इज़ द रीज़न कि आप कॉन्टीन्यूस टाइम सिग्नल जो भी है आपके पास, आप उसको डिस्क्रिटाइज करते हैं, डिजिटाइज करते हैं, देन आफ्टर प्रोसेसिंग उस डिजिटल सिग्नल को आप दोबारा वापस कॉन्टीन्यूस टाइम सिग्नल बना देते हैं, तो यू फाइंड द सेम सिग्नल बैक। जिस तरह आप अभी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो आप इसको कॉन्टीन्यूसली सुन रहे हैं, इट्स नॉट अ डिस्क्रीट सिग्नल, इट्स अ कॉन्टीन्यूस सिग्नल। लेकिन ये कॉन्टीन्यूस सिग्नल आफ्टर प्रोसेसिंग दोबारा डिस्क्रीट से मिलके बना है। जिस तरह अभी मैं बोल रहा हूँ तो थ्रू माइक यही आवाज़ कन्वर्ट हो रही है साउंड एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फिर जब ये मीडियम में जाके प्रोसेसिंग इसकी हो रही है, तो प्रोसेसिंग डिजिटल प्रोसेसिंग है, मीन्स फॉर इज कन्वर्टेड इनटू डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। अब एक कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल के कितने सैंपल्स आप लेंगे, तो वो फिर चैप्टर नंबर 7 में सैम्पलिंग थ्योरम है, ठीक है, कि आप इतने मिनिमम सैंपल्स लेंगे, then that samples are converted into digital signal, then that digital signal is processed, digitally processing होगी, then again this digital signal is converted into discrete, और फिर discrete से वो दोबारा continuous में convert होके through speakers आप उसे सुन रहे हैं, ठीक है। तो उसमें एक पॉइंट है सैम्पलिंग थ्योरम में जो चैप्टर नंबर 7 में, कि एक सिग्नल के आप कितने सैंपल्स लेंगे, तो जब आप उसको रिकंस्ट्रक्ट करेंगे तो आपको वही ओरिजिनल सिग्नल वापस मिलेगा। तो उसकी रिकंस्ट्रक्शन के लिए सैम्पलिंग थ्योरम है, विच सेज कि आपके पास जो सैम्पलिंग रेट है इट शुड बी ट्वाइस द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन द सिग्नल। एक सिग्नल के अंदर जो भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसके आप 2 टाइम्स सैंपल्स लेंगे उस टाइम डोमेन सिग्नल के, कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल के। तो फिर जब आप उसको रिकंस्ट्रक्ट करेंगे तो यू विल फाइंड द सेम ओरिजिनल सिग्नल। क्लियर? सर एक्सक्यूज मी, जी। ये जो लास्ट फार्मूला आपने लिखा है सर, अगर इसके थ्रू हम कहते हैं ना कि हमारे पास फोरियर सीरीज कोफिशिएंट जो डिफाइन है वो पीरियाडिक सिग्नल के लिए है, लेकिन अगर जी हम यहाँ पे ए पीरियाडिक सिग्नल का एक्स ऑफ जे ओमेगा फाइंड करें, लेकिन उसका पीरियड खैर अनडिफाइन होता है ना सर, तो तो फिर उसका तो अनडिफाइंड नहीं। है ना, जनरली वी से फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। सो ठीक है ए सर, समझ। पीरियोडिक, ठीक है, पीरियोडिक सिग्नल का पीरियड डिफाइंड होगा लेट्स से फ्रॉम माइनस टी बाई टू टू प्लस टी बाई टू, या वन टाइम पीरियड टी जो भी वैल्यू है। अब ए पीरियोडिक में और पीरियोडिक सिग्नल का मेन डिफरेंस यही है कि पीरियोडिक सिग्नल का अगर आप टाइम पीरियड जो है वो इनफाइनाइट कर दें, तो देन वी कॉल दिस थिंग एज अ ए पीरियोडिक सिग्नल। क्लियर? जी सर। तो यहाँ पे जो फोरियर सीरीज कोफिशिएंट्स की और फोरियर ट्रांसफॉर्म की रिलेशनशिप है, that is a k's are equal to 1 over t, where capital T represents the fundamental period, into x of j k omega naught, ठीक है। और generally we say it is a k's are 1 over t x of j omega with omega equals to k omega naught, ठीक। that simply आप बस इस इक्वेशन को याद कर, that's the relationship between the Fourier series coefficients and Fourier ट्रांसफॉर्म, जो इसका प्रूफ है बुक में काफ़ी डिटेल में गिवन है। तो जस्ट कंसिडर फ्यू एग्जांपल्स, मैंने बुक से कॉपी पेस्ट किए हुए हैं। x ऑफ t इक्वल्स टू साइन ऑफ ओमेगा नॉट t। अब अगर साइन ऑफ ओमेगा नॉट t लें विद ओमेगा नॉट कंसिडर्ड एज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो आइलर्स आइडेंटिटी से x ऑफ t किसके इक्वल आता है, e रेज़ टू द पावर j ओमेगा नॉट t माइनस e रेज़ पावर माइनस j ओमेगा नॉट t डिवाइडेड बाय 2j, ठीक। तो अगर आप इसको फोरियर सीरीज की जनरल फॉर्म के साथ फिर कंपेयर करते हैं, तो ओनली टू कोफिशिएंट्स आर डिफाइंड, k इक्वल्स टू 1 एंड k इक्वल्स टू -1। so the Fourier series coefficients of the sine, fundamental sine signal are a1 is 1 over 2j and a minus ones are equal to -1 over 2j, and all the other coefficients are 0, so a k's are equal to 0 for k not 1 एंड के नॉट इक्वल टू -1। जब के की वैल्यू 1 है तो कोफिशिएंट की वैल्यू 1 ओवर 2j है, के की वैल्यू -1 हो तो कोफिशिएंट की वैल्यू
minus 1 over 2j. ठीक. Similarly, Fourier transform for the cos signal is x of t is equal to cos of omega naught t. इसमें भी फिर दो कोफिशिएंट्स डिफाइंड होंगे by using the Euler's identity, which is again a raised power j omega naught t plus a raised power minus j omega naught t divided by 2. तो अगर आप उसको जनरल फोरियर सीरीज की इक्वेशन से कंपेयर करें तो k is equal to 1 and k is equal to minus 1 are defined, which are both equal to 1 over 2. इनके जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस हैं आप देख लें. So k is equal to 1 कहें, basically means k is equal to 1 is the first और फंडामेंटल कंपोनेंट. तो फंडामेंटल कंपोनेंट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ओमेगा नॉट. ठीक है, पहले कोफिशिएंट से k इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 1 की फ्रीक्वेंसी क्या है? ओमेगा नॉट है. उसका एम्पलीट्यूड a1 का एम्पलीट्यूड क्या है? 1 ओवर 2j. तो फोरियर ट्रांसफॉर्म की इक्वेशन अभी जो हमने लिखी थी वो क्या थी? x of j omega equals to 2 pi a k delta of omega minus k omega naught. So in case of sine signal, the दो coefficients defined है, k is equal to 1 and k is equal to minus 1. अगर आप साइन सिग्नल के लिए मैं इसी इक्वेशन को कॉपी करके यहाँ पे ले आऊँ, अब k is equal to 1 and k is equal to minus 1. अगर आप इसी इक्वेशन को ओपन कर दें तो क्या आएगा? इट विल बी 2 pi a1 into delta of omega minus omega naught plus again 2 pi delta of omega plus omega naught. ठीक है, यहाँ पे सिर्फ दो कोफिशिएंट्स डिफाइंड है, k is equal to 1 and k is equal to minus 1. This will be 2 pi a minus 1. क्लियर? ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट पे एक इम्पल्स आएगा विद एन एम्पलीट्यूड 2 पाई a1, and similarly there is an impulse at omega is equal to minus omega naught with an amplitude of 2 pi into a minus 1. अगर आप इनके एम्पलीट्यूड्स को लें तो रिजल्टेंट फंक्शन क्या बनता है? एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, दिस इज 2 पाई a1. a1 क्या है? 1 over 2j. So this is 2 pi times 1 over j. 2 cancels out और तो आपके पास क्या रह जाता है? pi divided by j. Similarly at omega is equal to minus omega naught, this will be 2 pi into a minus 1. a minus 1 की वैल्यू क्या है? minus 1 over 2j. So 2 pi times minus 1 over 2j results in minus pi divided by j. ठीक, इसमें आप कह सकते हैं कि से दो फ्रीक्वेंसीज हैं, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट एंड ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा नॉट. तो अगर आप इस फंक्शन को देख लें, साइन फंक्शन को, कोफी आपके पास फ्रीक्वेंसीज क्या हैं? दे आर प्योरली इमेजिनरी और इट्स अ कम्प्लेक्स नंबर और इट इज रियल. पाई बाई जे क्या चीज़ है? कॉम्प्लेक्स कम्प्लेक्स है, Imaginary. रियल है, प्योरली इमेजिनरी है? कॉम्प्लेक्स प्योरली इमेजिनरी है. प्योरली इमेजिनरी है. ठीक है, तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट पे वैल्यू पाई बाई जे है और ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा नॉट पे माइनस पाई बाई जे है. अगर आपको कोफिशिएंट्स याद हो तो इस ट्रांसफॉर्म को देख के आपको क्या लगता है कि इसका जो टाइम डोमेन सिग्नल है उसे क्या होना चाहिए?
even odd या neither even neither odd? आड होना odd होगा। चाहिए। odd होगा क्योंकि कोफिशिएंट्स क्या हैं, a1 इस इक्वेशन में गिवन भी है, ठीक है। a1 की वैल्यू है 1/2j, a-1 की वैल्यू क्या है -1/2j। So a1 is equal to minus times a minus 1, or we say a k's are equal to minus times a minus k. तो जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो वी से द करस्पॉन्डिंग टाइम डोमेन सिग्नल विल बी ऑड। तो इसका करस्पॉन्डिंग टाइम से डोमेन सिग्नल क्या है, साइन सिग्नल है, एंड वी ऑल नो दैट साइन सिग्नल इज अ ऑड सिग्नल। सिमिलरली कॉस सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, बेसिक कॉस सिग्नल का, ठीक। दिस इज a1 इक्वल्स टू a-1 इक्वल्स टू 1/2, तो अगेन दिस विल बी 2 pi into a1, 2 pi into 1 by 2 results in pi. So a sample at omega is equal to omega naught, उसका amplitude pi units है, and similarly at omega is equal to minus omega naught, उसका amplitude भी क्या है, pi है। So again from this equation we say a1 equals to a-1, that is equal to 1/2। तो ये means a k's are equal to a minus k's। ये कब possible है, or you जब can टाइम डोमेन सिग्नल इवन जब टाइम डोमेन सिग्नल इवन हो। तो अगर आप इस फ्रिक्वेंसी कोफिशिएंट्स को भी देख लें या फ्रिक्वेंसीज को, ये दे आर प्योरली रियल, ठीक है। यहाँ पे भी ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट पे भी पाई है, ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा नॉट पे भी पाई है। सो वी से दैट ए केज आर इक्वल टू ए माइनस केज, और इन टर्म्स ऑफ फ्रिक्वेंसीज, ठीक। सो वी से इसका जो टाइम डोमेन सिग्नल होगा इट विल बी एन A1 सिग्नल। अब प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज में फिर ये सारी चीज़ें दोबारा रिपीट होंगी। सो फॉर प्रॉपर्टीज को पढ़ने से पहले आपने एक ट्रांसफॉर्म पेयर को याद करना है, ठीक है। बिकॉज वी से व्हेनेवर वी फाइंड द इनवर्स ट्रांसफॉर्म, तो इनवर्स ट्रांसफॉर्म में कभी भी सिंथेसिस इक्वेशन नहीं यूज करनी। वी आर ऑलवेज सपोज टू, ट्रांसफॉर्म पढ़ा ही इसीलिए था कि इट कन्वर्जेस फ्रॉम complex calculus to basic algebra, कि आप इंटीग्रेशन को अवॉइड करें, डेरिवेटिव पे आ जाएं, और या डेरिवेटिव को भी अवॉइड करें, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन पे आए या डिफरेंस पे आए, बेसिक, ठीक है। सो हियर वी से x of t with a Fourier transform x of j omega। सो एग्जांपल हम कर चुके हैं दैट x of t equals to e raised power minus at u of t with a greater than 0। So using the analysis equation, integral x of t e raised power minus j omega t, यहाँ पे इस वैल्यू को डाल दें, e raised power minus at u of t into e raised power minus j omega t, then solve this integral। So because of u of t, limits will be from 0 to infinity, e raised power minus at e raised power minus j omega t dt। Base same powers are added, so this is integral e raised power minus a plus j omega t dt। So integration है with respect to time, ये क्या आ जाएगा 1/minus into a plus j omega, then e raised to the power minus a plus j omega t with the t limits from 0 to infinity। अपर लिमिट infinity इंसर्ट करेंगे तो रिजल्ट विल बी 0, और अपर लिमिट 0 इंसर्ट करें तो देन इट इज इक्वल टू -1, ठीक। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसका ट्रांसफॉर्म क्या होता है 1/a plus j ओमेगा, जो प्रीवियस क्लास में हम कर चुके हैं। इसका मैग्नीट्यूड क्या आया था, इक्वेशन कोई बताएगा प्रीवियस क्लास में, इसके 1 डिवाइड मैग्नीट्यूड, बाई अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड हो। जो मैग्नीट्यूड की इक्वेशन थी वो क्या थी 1/√a² प्लस ओमेगा स्क्वायर, और फेज की क्या इक्वेशन थी, जी इसकी फेज की क्या इक्वेशन थी, टेन इनवर्स ऑफ ओमेगा बाई ए। tan इनवर्स ऑफ ओमेगा बाई ए या माइनस ओमेगा बाई ए,
Omega tan inverse of omega by a या tan inverse of minus omega by a? ये इस क्लास में दो ही बंदे एक्टिव हैं, बाकी सारे सोए हुए हैं। सुन रहे हैं सर हम। अब सिर्फ सुनने वाली कौन है, या पहले से सारा कुछ समझ आए हुए इसलिए इंटरप्शन नहीं कर रहे? यस सर। चलिए अच्छी बात है, आई विश। अच्छा, x of j omega equals to 1 over a plus j omega with the condition a is greater than 0. a को क्यों greater than 0 होना चाहिए? So that this represents an energy signal and then the transform converges. ठीक है, तो ये जो ट्रांसफॉर्म पेयर है, you have to memorize it, that e raised power minus at u of t का जो ट्रांसफॉर्म है 1 over a plus j omega with the condition a is greater than 0, और जो 1 ओवर ए प्लस जे ओमेगा फॉरियर ट्रांसफॉर्म है विद ए ग्रेटर देन 0, इसका जो इनवर्स आएगा दिस विल बी e raised to the power minus at u of t. So you have to memorize this, जो कि सारी प्रॉपर्टीज में यूज होगा, स्पेशली व्हेन वी आर टेकिंग इनवर्स। ठीक, प्रॉपर्टीज वही है जो सारी की सारी हमने किस में पढ़ी थी? प्रॉपर्टीज कितनी बार पढ़ चुके हैं अभी तक? सर कैसा? 3 तक का। जी, ये किसका नाम है? ठहरें एक मिनट। बिस्मा आलम। जी सर। लिनियरिटी प्रॉपर्टी इस कोर्स में कितनी दफ़ा पढ़ चुके हैं? 3 दफा सर। कहाँ कहाँ पे? तो फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड में, और सर ये जो फोरियर सीरीज का था इसमें हमने डिस्क्रीट और कंटिन्यूस दोनों के लिए पढ़ा था। तो बेसिकली जो चैप्टर 3 में पढ़ा था डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूस के लिए, एज वेल एज चैप्टर नंबर 1 में। ठीक है, तो चैप्टर 1 की लिनियरिटी प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर आप दो सिग्नल्स को, मीन्स इफ़ टू इनपुट्स आर गिवन एट द सेम टाइम टू अ सिस्टम, या दो से ज़्यादा सोर्सेज हों, तो सिस्टम की ओवरऑल आउटपुट किसके इक्वल होती है? दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द आउटपुट्स ड्यू टू इंडिविजुअल सोर्सेज, दैट इज सुपरपोजिशन। और दूसरी क्या चीज़ थी? इफ द इनपुट इज स्केल्ड बाय सम कांस्टेंट देन आउटपुट मस्ट बी स्केल्ड बाय द सेम कांस्टेंट। यहाँ पे लीनियरिटी प्रॉपर्टी का क्या मतलब होगा कि x of t as a Fourier transform x of j omega and y of t as the Fourier transform y of j omega. Then we say that if a signal x of t is multiplied with some constant a and y of t is multiplied with some constant b and both of them are added, let's say इनकी एडिशन से जो रिजल्टेंट सिग्नल आता है, I call it as z of t. Z of t is ax of t plus b times y of t. तो z of t का ट्रांसफॉर्म क्या होगा? z of j omega, and z of j omega should be equal to Fourier transform of x of t multiplied by a plus Fourier transform of y of t multiplied by b. तो शॉर्टली इसका प्रॉपर्टी का फ़ायदा क्या है कि अगर आपने z of t का ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, एंड हेयर वी एज्यूम दैट Fourier transform of x of t and say y of t are known, ठीक है, और आपने टाइम डोमेन सिग्नल्स को ऐड भी करना है और स्केल भी करना है, और फिर जो रिजल्टेंट आए उसका ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। तो शॉर्टली वी से दैट कि z of t का जो ट्रांसफॉर्म होगा दैट विल बी z of j omega and it will be equal to a times the Fourier transform of x of t plus b times the Fourier transform of y of t. मीन्स कि आपको यहाँ पे ये नहीं करना कि जी x of t को मल्टीप्लाई करें a के साथ, फिर y of t को मल्टीप्लाई करें b के साथ, जो रिजल्टेंट आए उनको ऐड करें and then use the analysis equation to find the Fourier transform of z of t. You can directly use the linearity property
to find the transform of resultant signal, which says it is equal to a times transform of one signal and b times transform of another signal. अब इसी की जनरलाइज्ड फॉर्म क्या है कि अगर आपके पास एज्यूमिंग के इनफाइनाइट सिग्नल्स तो चलने नहीं होते, वी से देयर आर n signals. ठीक है, so if n signals are added in time domain with different constants ai's, so summation I from 1 up to n ai xi of t, इसका ट्रांसफॉर्म क्या होगा? This will be I from 1 up to n ai's into xi of j omega. अगर आपके पास टाइम डोमेन में n टाइम डोमेन सिग्नल्स हैं जिनको आपने ऐड करना है और उनका ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, तो ओवरऑल ट्रांसफॉर्म विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द ट्रांसफॉर्म्स ऑफ इंडिविजुअल सिग्नल्स. ठीक. सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? इट इज अ टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या थी? If x of t has a transform x of j omega, x of t minus t naught का ट्रांसफॉर्म क्या है? e raised to the power minus j omega naught, j omega t naught into x of j omega. So means कि अगर आप टाइम डोमेन में सिग्नल को शिफ्ट करते हैं तो उसका इफेक्ट फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या है? फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसका इफेक्ट ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द फंक्शन रिमेन्स सेम, ओनली देयर इज अ फेज चेंज, और वो फेज चेंज कितने? इट इज ओमेगा टाइम्स टी नॉट. अब इस इक्वेशन का प्रूफ गिवन है फ्रॉम बुक यूजिंग द सिंथेसिस इक्वेशन के इनवर्स इक्वेशन क्या है? x of t is 1 over 2 pi integral x of j omega e raised to j omega t d omega. x of t minus t नॉट क्या होगा? t को रिप्लेस कर दें t minus t नॉट से इसी इक्वेशन में. This will be 1 over 2 pi integral x of j omega e raised to j omega t minus t naught, okay, into d omega. You can rewrite this as 1 over 2 pi integral e raised to minus j omega t naught into x of j omega multiplied by e raised to j omega t d of omega. So here we say, recognizing this as the synthesis equation for x of t minus t naught, so we conclude that Fourier transform of x of t minus t naught is equal to e raised to minus j omega t naught into x of j omega. Further इसकी क्या किया हुआ है? Fourier transform of x of t is x of j omega equals to, in the polar form, magnitude of x of j omega multiplied by e raised to the power angle of j omega. So Fourier transform of x of t minus t naught equals to e raised to minus j omega t naught x of j omega. तो अगर x of j omega को आप ऊपर वाली इक्वेशन से इस फॉर्म में लिखें कि मैग्नीट्यूड ऑफ x of j omega multiplied by e raised to the power j angle of x of j omega minus omega t naught. ठीक. तो ये इक्वेशन ये शो कर रही है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द फंक्शन थोड़ा सा रिमेन्स, जूम कर दे. थोड़ा सा जूम कर दें, बुक से इमेज कॉपी किया है शायद इसलिए सही नहीं नजर आ रहा. So here we say that Fourier transform of x of minus t naught is e raised to minus j omega t naught x of j omega. x of j omega को इस फॉर्म में लिखे magnitude into base. So when we say base, same powers are added. So this is magnitude x of j omega e raised to the power j multiplied by angle of x of j omega minus omega t naught. ठीक है. So thus the effect of time shift on a signal is to introduce into its transformer phase shift. कितना phase shift? It is minus omega t naught, which is a linear function of omega. अब एक एग्जाम्पल है रिलेटेड टू दिस प्रॉपर्टी. अब प्रॉपर्टी क्या कहती है? इसमें एक चीज गिवन है. गिवन क्या लास्ट चीज है स्टेप्स रिवाइज कर दे. जी? लिनियरिटी लास्ट 2 स्टेप्स रिवाइज कर दे. सेकंड लास्ट स्टेप सर. Fourier transform of x of t, it is represented by what? X of j omega. When we say x of j omega is a complex quantity, तो उसकी पोलर फॉर्म क्या होगी? मैग्नीट्यूड ऑफ द फंक्शन
multiplied with angle e raised to the power j theta होता है normally, and theta in this case is tan inverse of imaginary part by real part. So we say this theta is represented as an angle of x of j omega. ठीक है, अब अगर टाइम शिफ्टेड सिग्नल का ट्रांसफॉर्म क्या होगा, दिस विल बी e raised to the power minus j omega t naught into x of j omega. तो अगर आप x of j omega को पोलर फॉर्म में लिखते हैं तो वी से इट इज मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय फेज then multiplied by e raised to the power minus j omega t naught. So base same powers are added. E raised power j into angle of x of j omega minus omega t naught. तो इस इक्वेशन से क्या शो हो रहा है कि the effect of time shift on a signal is to introduce into its transformer फेज शिफ्ट कि टाइम डोमेन में आप सिग्नल को शिफ्ट करते हैं, जब फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसका क्या इफेक्ट आता है, इट ओनली शिफ्ट्स इन द फेज ऑफ द फ्रीक्वेंसी, जबकि मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट रिमेन्स सेम. क्लियर? यस सर. अब एक एग्जांपल है, सॉल्व एग्जांपल है फ्रॉम द बुक. इस एग्जांपल में क्या गिवन है, to illustrate the usefulness of the Fourier transform linearity and time shift property, let us consider the evaluation of the Fourier transform of the signal x of t shown in figure. आपको फिगर में ये फंक्शन गिवन है, इसका आपने फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है. तो इसके मुख्तलिफ तरीके हैं. एक डायरेक्ट एवेल्यूएशन है एंड द सेकेंड वन इज to use properties. तो डायरेक्ट एवेल्यूएशन अगर आप करें तो किस तरह करेंगे, यूजिंग द एनालिसिस इक्वेशन. x ऑफ j ओमेगा किसके इक्वल होगा, मींस एनालिसिस इक्वेशन का मतलब क्या है, कि आप ये इक्वेशन यूज करें. ठीक है, एक आप ये तरीका कर सकते हैं कि यहाँ पे आप इस इक्वेशन को यूज करें. x ऑफ t क्या गिवन है, तो यहाँ पे अगर आप मैथमेटिकली इसको करते हैं यूजिंग दैट एनालिसिस इक्वेशन, तो क्या होगा, इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 2 विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 1 e raised to power minus j omega t dt plus integral with the limits from 2 to 3 with an amplitude 1.5 into e raised to power minus j omega t dt plus integration from 3 to 4 with an amplitude 1 multiplied by e raised to power minus j omega t dt. तो अगर आप इस इक्वेशन को यूज करते हैं, इस इक्वेशन को, तो मीन्स आपने 3 इंटरवल्स में इसको 3 बार इंटीग्रेट करना है. Clear? So that is one method of doing that. Another method says that, वो क्या कह रहा है कि आपके पास हमने एक इक्वेशन के थे चैप्टर नंबर 4 में ही, there was a Fourier transform of a square wave. ये वाली इक्वेशन कि consider the rectangular pulse signal x of t equals to 1 for t less than t1 and 0 for t greater than t1. इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हमारे पास क्या आया था, 2 times sin of omega t1 divided by omega. Means you have to memorize this transform as well. ये इसकी graphical representation है. So here we say that this transform pair is known. ठीक है, this transform pair is known कि अगर x of t एक rectangular pulse है with a amplitude 1 and a pulse width from minus t1 to plus t1, उसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है, it is a sinc function as 2 sin of omega t1 divided by omega. ये क्वेश्चन एग्जांपल होप सो आपने की होगी, पिछली क्लास में करवाए भी थे. So here we say this transform pair is known. अगर x of t equals to the rectangular pulse, then its transform equation
function is given as 2 sine of omega t 1 divided by omega. The graphical representation है. This thing is known to us. Now using this transform, find the Fourier transform of this function x of t. ठीक है, question ये कि using the transform pair of the rectangular pulse and using linearity property, find transform of this function. इस फंक्शन में हम एक काम कर सकते हैं, अगर मैं x1 ऑफ t एक सिग्नल लूँ जो कि -1/2 से लेकर +1/2 तक एम्पलीट्यूड 1 है, और एक और सिग्नल लूँ x2 ऑफ t जिसका एम्पलीट्यूड क्या है -3/2 से लेकर +3/2 तक इसका एम्पलीट्यूड 1 है. ठीक है, अब ये दो सिग्नल्स है हमारे पास. x1 ऑफ t का ट्रांसफॉर्म क्या होगा? x1 of j omega, which will be 2 sine of omega by 2 divided by omega. ये कहाँ से आया आपके पास? x1. इसको आप कंपेयर करें इस फंक्शन के साथ, तो t1 की वैल्यू क्या बनेगी? इसको अगर आप कंपेयर करते हैं इस सिग्नल से, t1 की वैल्यू क्या बनती है? -1 डिवाइड बाई 2. -1 डिवाइडेड बाय 2. इसका ट्रांसफॉर्म फिर क्या आएगा? 2 साइन ऑफ ओमेगा t1 डिवाइडेड बाय ओमेगा. t1 की वैल्यू क्या है? 1/2. सिमिलरली x2 ऑफ t अगर फंक्शन है, ठीक है, इसका ट्रांसफॉर्म क्या बनेगा? मींस यहाँ पे t1 की वैल्यू क्या होगी? 3 0. डिवाइड बाई 2. 3 डिवाइड बाई 2. ठीक है, क्योंकि आपके पास ये सिग्नल है ना -t1 से +t1, अगर आप इसको कंपेयर कर रहे हैं इसके साथ, t1 की वैल्यू है -3/2. So we said is x2 of t with an amplitude 1. इसका ट्रांसफॉर्म क्या होगा? x2 of j omega, it is equal to 2 sine of 3 omega by 2 divided by omega. प्लीज अगर कॉपी पेंसिल है तो इसको थोड़ा सा नोट कर दें. ठीक, तो ये तो x1 of j omega और x2 of j omega आ गए. अब सवाल ये बनता है कि x of t और x1 और x2 की आपस में रिलेशनशिप क्या है? x of t equals to sum of these two and also a shifted signal. कोई बताएगा x of t किसकी इक्वल है in terms of x1 and x2? जी, अगर कॉपी पेंसिल है तो थोड़ी सी कोशिश करें. x of t in terms of x1 and x2 using linearity property, using time shifting property. जी, प्लीज इसको इस तरह से देख लें. अगर x1 of t को मैं राइट शिफ्ट करता हूँ, इतना राइट शिफ्ट करता हूँ so that it approaches to 2 and 3, because -1/2 से लेकर +1/2 तक एम्पलीट्यूड 1 है, तो इसका टोटल टाइम ड्यूरेशन है 1 यूनिट. ठीक है, सो -1/2 टू +1/2, तो -1/2 इसको मैं कितना शिफ्ट करूं कि ये वैल्यू 2 पे आ जाए? तो -1/2 के साथ 2 को ऐड कर दें. जी, कितना 0.5? नहीं, इसको यहाँ पे देख लेना, -1/2 है ये वैल्यू. ठीक है, -1/2 है, इसको मैं कितना शिफ्ट करूं कि ये 2 पे आ जाए? 1.5. तो 1.5 शिफ्ट करने का तो मतलब होगा कि -1/2 प्लस 1.5, वो तो 1 आएगा. जी,
2.5 सर। अब इसके मैग्नीट्यूड को ऐड कर दें इस 2 के साथ, ठीक है। तो अगर आप इस x1 ऑफ t को 2.5 यूनिट्स राइट शिफ्ट करेंगे तो आपको क्या सिग्नल मिलेगा, x1 ऑफ t माइनस 2.5, तो वो मिलेगा आपको -2 से +2 से लेकर +3 तक, ठीक है। 2.5 यूनिट्स आप इसको राइट शिफ्ट करें तो जो वैल्यू 1/2 पे वो वैल्यू 3 पे आएगी, जो वैल्यू -1/2 पे वो वैल्यू 2 पे आएगी। और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दें 0.5 के साथ, मींस 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, 0.5, ठीक। सिमिलरली फॉर द सेकेंड पार्ट, -3/2 की वैल्यू 1 पे आनी चाहिए, कितना शिफ्ट करेंगे, -3/2 इज लाइक -1.5, तो मैं कितना शिफ्ट करूं तो ये 1 पे आ जाए, जी 1.5 कितना, सर अगर 1.5 करे तो हो जाए। ये -1.5 है, तो अगर इसके साथ मैं 1.5 शिफ्ट करके ऐड कर दूं तो ये वैल्यू तो 0 पे जाएगी, मुझे ये वैल्यू 1 पे चाहिए। 2.5 सर 2.5 ही। 2.5 इसको शिफ्ट करें तो जो वैल्यू -3/2 पे है वो 1 पे आ जाए। x ऑफ t को लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ x1 एंड x2 एज x of t equals to 1/2 x1 of t minus 2.5 plus x2 of t minus 2.5, क्लियर। जो आपके पास ये सिग्नल है x of t इन टर्म्स ऑफ x1 एंड x2 किस तरह लिखा गया, ये 1/2 into x1 of t minus 2.5 plus x2 into t minus 2.5। so इसे x1 of t का ट्रांसफॉर्म हमें पता है फ्रॉम दैट ट्रांसफॉर्म पेयर, that is 2 sine of omega by 2 divided by omega, and similarly x2 of j omega का ट्रांसफॉर्म क्या है, 2 sine of 3 omega by 2 divided by omega। सर एक्सक्यूज मी जी सर, 2 और 3 के मिड में हमने क्यों शिफ्ट किया है? क्या चीज, सर हमने इस सिग्नल को 2 और 3 के मिड में क्यों लाए? 3 और 4 में भी तो कर सकते थे। 3 और 4 में भी कर सकते थे, फिर आपके पास 3 सिग्नल्स बनते हैं, 1 से 2 तक, 2 से 3 तक और 3 से 4 तक। फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि x ऑफ t इक्वल्स टू x1 ऑफ t प्लस x2 ऑफ t प्लस x3 ऑफ t। तो x1 क्या है, 1 से लेकर 2 तक 1 है, यूज लिनियरिटी प्रॉपर्टी हमने यूज करनी, तो ऐड करना है हमने। तो x1 को लें 1 से 2 तक, x2 को लें 2 से 3 तक, 0.5, फिर से 4 का सिग्नल लें विद एन एम्पलीट्यूड 1, 160 to x1 plus x2 plus 3, and as we say from this book we know this transform here कि हमें इस पता है, ठीक है। x of t rectangular transform है, this transform is right, ठीक। Based on this thing we say yeah x of compose in such a way that approximates to or is equal to the sum of particular pulses, ठीक। Basically हम इस तरह करके हम 2 पल्स ले रहे हैं, एक तो यहाँ पे बेसिकली हमने 2 3 का मिड पॉइंट लिए, 2 3 का मिड पॉइंट क्या होता है 2.5, तो अगर मैं इस सिग्नल को 2.5 शिफ्ट कर दूं जो वैल्यू 2.5 पे वो 0 पे आएगी, ठीक है। मींस आप की वैल्यू से टू इंस्टेड यहाँ पे 1 की जगह एम्पलीट्यूड 0.5 है, फिर मैं डायरेक्टली को ऐड करूँ
मुझे resultant signal मिलेगा shifting. But we say that we know some of a regular pulse. उस साथ compare क्या कर रहे हैं x of t को represent of x1 and x2. वो equation क्या होती है? x of t is 1 by 2 of t minus 2.5 plus 2 into t minus 2. If we say whether this one is for the regular pulses shown in figure, then using the result example 4.4 4.4 ये summation और दूसरी और एक दोनों सिग्नल 0.5 omega multiplied with the transform of x1 of t, which is 2 sine of omega by 2 divided by omega. तो यहाँ पे ये वाला जो 2 है और ये 1 by 2 they are cancelled out. तो ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा e raised power minus j5 omega by 2 into sine of omega by 2 divided by omega plus the transform of x2 of j omega. ठीक है, तो वो क्या होगा 2 times sine of 3 omega by 2 divided by omega multiplied with टाइम शिफ्टिंग की वजह से क्या आएगा e raised power minus j5 omega by 2. ठीक, so here we say that if you know the properties और 2-3 ट्रांसफॉर्म पेयर्स हैं जो कि आपने याद करने हैं, आगे जो टेबल आएगा उसमें गिवन भी है कि आपने ये वाले ट्रांसफॉर्म पेयर्स को याद करना है. ठीक है, how to find their transforms you must be able to use the analysis equation. और कुछ ट्रांसफॉर्म पेयर्स हैं जो कि आपने याद करने हैं, जिसमें एक अभी हमने कहा था कि e raised power minus at u of t का ट्रांसफॉर्म क्या है 1 over a plus j omega, और दूसरा ट्रांसफॉर्म पेयर आपके पास रेक्टेंगुलर पल्स का होगा. अगर आपके पास ये रेक्टेंगुलर पल्स है तो इसका ट्रांसफॉर्म क्या है, अगर आपके पास ये रेक्टेंगुलर पल्स है तो इसका ट्रांसफॉर्म क्या होगा. ठीक है, तो उसके लिए आपने एग्जांपल नंबर 4.4 की जो जनरलाइज्ड फॉर्म है, you have to memorize this thing. x of t equals to this thing, then what is x of j omega? आपके पास सिंक फंक्शन है. Clear? So using properties you have to find the transform. अब properties अगर x of t का ट्रांसफॉर्म क्या x of j ओमेगा, x of minus t का ट्रांसफॉर्म क्या होगा x of minus j ओमेगा. कैसे? छोटा सा कि एनालिसिस इक्वेशन x of j omega minus j t. So let's say y of t is equal to x of minus t. तो y of j omega क्या होगा, इंटीग्रल y of t raised to minus j omega t dt. y of t को रिप्लेस कर this of minus t with integral for minus t. इस इक्वेशन क्या कर रहे हैं, माइनस टी को रिप्लेस कर टी से. बुक में कहा गया कि माइनस टी को रिप्लेस करें टा से. यहाँ से मैं ये कह रहा हूँ कि माइनस टी को रिप्लेस टी से इंटरचेंज लेंगे. माइनस डी टी. ठीक है, अगेन रिवर्सिंग द लिमिट्स, तो माइनस साइन आ जाएगा, इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी x of t e raised to the power j omega t. ठीक है, इनटू dt. ये माइनस कहाँ पे चला गया, अब सेंटर की लिमिट्स द्वारा रिवर्स
j omega of t or j omega t dt. Equation side is of of a. So we say y of minus j omega equals to j omega. Again we say place omega minus omega. तो हम इसको कर सकते हैं y of j omega is x of minus j omega. तो अगर इसका इन्वर्स है तो y of omega का इन्वर्स क्या है y of t. ठीक, minus j omega transform of y of t. Y of t of minus t. Shortly we say अगर x of t का ट्रांसफॉर्म क्या है x of j omega, x of minus t का ट्रांसफॉर्म this will be x of minus j omega. अगर आपने सिग्नल को रिवर्स कर दें फ्रीक्वेंसी डोमेन में the frequency are reversed. Equation.